Beta, illustration 24, the sums on short sums. The entire illustration is on short sums, and mark it a very important one. Mark it a very important one. Let's start. Let's start now. Answer the following questions. Pehla wala. Try it on your own. Come on. Try out on your own. Very simple. Very simple. Su keche jara wachiye. The price of the wheat was 1600 per quintal in the year 2014 and 1800 per quintal in the year 2015. तो जो ये 2016 का बोले हैं वो क्या है? It's the price of the base year, and 2015 का जो ये price बोले हैं, that is the price of current year. Find the price index number of the wheat. Now price index number of the wheat. बेटा इस पर हमने ये पूरे फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर खत्म कर दिया. I का फॉर्मूला क्या है? P1 upon P0 into 100. So 1800 divided by 1600 into 100. 1800 divided by 1600 into 100. बेटा मैंने भी अपना कैलकुलेटर उठा लिया है. 1800 divided by 1600 into 100, that comes to 112.5. We are also supposed to interpret. बेटा ये इंटरप्रिटेशन वाले बहुत बार हमने प्रीवियसली सम कर लिए हैं. इंटरप्रिटेशन वाले सम हमने बहुत बार कर लिए. कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप. इंटरप्रिटेशन के विरुद्ध थसे. इंटरप्रिटेशन के विरुद्ध थसे. माय आंसर इज 112.5. प्रियंका. Yes, sir. 112.5 minus 100. So what is the interpretation? I'll write. Interpretation શું આવશે પ્રિયંકા? Unmute. 12.5. 12.5 પણ હું શું લખીશ બેટા ઇંગ્લિશમાં? એવું પૂછું છું. અલે યાર અનમ્યુટ રહો ના. Then it can be said there is a rise of 12.5% in the price of wheat. Yes, तो हमको ऐसा पूरा इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ेगा कि ये जो 112.5 आया तो हम इंटरप्रिटेशन में ऐसा लिखेंगे, compared to the base year, the prices of wheat has increased. The prices of wheat has increased by 12.5%. The prices of the wheat has increased by 12.5%. और वो कैसे आया? 112.5 minus 100. 112.5 minus 100. Come on, start. Come on, start. Compared to the base year, the prices of the wheat has increased by 12.5%. and वो कैसे आया? ये 112.5 minus हम 100 कर देंगे. 112.5 उसमें से हम 100 minus कर देंगे. Do you get that? Let's see the second sum. Let's see the second sum. The Laspers index number is 8 by 9 times that of Fisher. Laspers index number is 8 by 9 times that of Fisher. and Fisher का index number कितना दिया है? हमको Fishers का index number दिया है 180. Find Pasch's index number. तो करते हैं. इंग्लिश में पहले लिखा क्या है पहले वो समझते हैं. इंग्लिश में Laspers index number, that is IL,
is 8/9 times of IF. Lashper's index number is 8/9 times that of Fisher's. And Fisher का index number कितना है? 180. Right? Fisher का index number है 180. मुझे पास्चे का इंडेक्स नंबर ढूंढना है, ऐसा बोल रहे हैं, जरा चेक करो. So can I write IL is equal to 8/9 into IF, that is 180. देखो IF is 180. So अगर हम इसके सिंप्लीफाई करें, so IL will be equal to 160. IL will be equal to 160. Okay. So अब अपना फिशर का फॉर्मूला क्या है बेटा? फिशर का फॉर्मूला IF is root IL into IP. So our Fisher's answer is 180. IL is 160 into IP. Okay. अब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? What we would do to remove the root? Yes, here. Unmute. Here. Squaring both sides. Can I say we need to square both the sides in order to remove the roots? Can I say I would say square both the sides? Square both the sides. So 180 का square into ये रूट हट जाएगा 160 into IP. तो बेटा 180 का जो स्क्वायर है, 180 का जो स्क्वायर है, that's nothing but 180 का स्क्वायर जो है that is nothing but 180 into 180, and that is equal to 160 into IP. Therefore IP is equal to 180 into 180 divided by 160. 180 into 180 divided by 160. We're at 202.5. It's 202.5. बेटा शॉर्ट सम्स पता चल रहे हैं? शॉर्ट सम्स एनी डाउट? बेटा शॉर्ट सम्स एनी डाउट? दो सम निपटा दिए हमने, दो सम निपटा दिए. कहना से दोनों ही इजी थे, दोनों ही इजी थे. लेट्स रीड द थर्ड वन. Let's read the third one. If the production of an item has increased, बेटा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. If the production of an item of the year 2015 has increased by 3 times the production compared to the base year, find the index number for the year 2015. Now it has increased by 3 times. So अगर मैं 3 टाइम्स का वैल्यू फाइंड आउट करूं कि भाई वो प्रोडक्शन जो 3 टाइम बड़ा है वो वैल्यू कितनी होगी? 3 टाइम्स. तो कहना से अगर मान लो प्रोडक्शन अपना 100 अगर हो रहा है तो वो 3 टाइम्स हमने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि
हम प्रोडक्शन करते कितना थे वो पता नहीं है, हम कितना प्रोडक्शन कर रहे थे वो हमको पता नहीं है, लेकिन अब अपना प्रोडक्शन 3 गुना हो गया है, तो मेरा आंसर 300 आएगा कि भाई हमने 3 टाइम हमारा प्रोडक्शन कर दिया है, बट द वर्ड व्हाट इज गिवन इंक्रीज्ड। तो जब हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, जब हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तब हमें शब्द दिया है इंक्रीज, मतलब 3 टाइम्स का आंसर है 300। और अगर अब इंग्लिश में हम ध्यान से पढ़ें, इंग्लिश में अगर हम ध्यान से पढ़ें, तो मेरा जो प्रोडक्शन है क्या, तो मेरा जो इंडेक्स है इट हैज इंक्रीज्ड बाय 300। 3 टाइम्स का मतलब इट हैज इंक्रीज्ड बाय 300। सो इफ इट हैज इंक्रीज्ड बाय 300, तो मेरे को बेस ईयर का इंडेक्स कितना होगा, अगेन हमको दिया नहीं है, वो 100 होगा। बेस ईयर का इंडेक्स अपने को दिया नहीं है तो वो 100 होगा, और वो 300 से बढ़ रहा है। तो इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015, इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015, अब यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि मेरे बेस ईयर का इंडेक्स, बेस ईयर का इंडेक्स हमको नहीं बोला है, तो इट विल बी अगेन ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी 100, और यहां पर वो 3 टाइम्स 300 से इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा फाइनल आंसर 400 आएगा। मेरा फाइनल आंसर 400 आएगा। इंडेक्स नंबर जो है, हमको बेस ईयर का इंडेक्स क्या है वो नहीं बोला है, तो वो हमेशा 100 होगा। एंड इट हैज इंक्रीज, ये शब्द इंक्रीज बोला है, इसलिए 100 में हम 300 जोड़ के 400 मेरा फाइनल आंसर आएगा, 400 रुपया। अगर अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता, अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता कि इंडेक्स नंबर हैज बिकम 3 टाइम्स, ऐसा इंक्रीज वाला शब्द नहीं देते, क्या लिखा होता, इंडेक्स नंबर हैज बिकम 3 टाइम्स, तो मेरा आंसर 300 आता, 300। इंग्लिश जरा ध्यान से समझो, ध्यान से पकड़ो। अगर ऐसा शब्द होता है कि भाई हमने हमारा इंडेक्स नंबर कर दिया 3 टाइम्स, तो मेरा आंसर 300 आएगा। अगर ऐसा लिखा है इट हैज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, तो जो भी मेरा आंसर है उसमें 100 हम जोड़ देंगे। सो इंक्रीज जब भी बोला है तब उसमें 100 ऐड करके हम अपना इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। एमसीक्यू में भी आएगा ये शब्द इंक्रीज, कुछ बार देंगे, कुछ बार इंक्रीज नहीं भी देंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द आंसर। फोर्थ वाले पे चलो, खुद से ट्राई करो, फोर्थ, नो हेल्प, बहुत इजी है फोर्थ। if sigma p1 q0 is to p0 q0 is 3 is to 2, p1 q1 is to p0 q1 is 5/3, लास्पेर पास्चे और फिशर का इंडेक्स नंबर मुझे ढूंढना है, लास्पेर पास्चे और फिशर का इंडेक्स मुझे ढूंढना है। स्टार्ट कर, प्लीज स्टार्ट, नो हेल्प, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, कम ऑन।
બેટા anybody could solve that? Easy છે. લાસ્ટ પેર પાસ છે અને ફિશર્સ નો ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. इट्स वेरी इजी. कितनों का हो गया? कितनों का हो गया? Oh, very few. Very few. सर इलस्ट्रेशन है, निपटाई देंगे हम, आप चिंता मत करो. हैरी अनम्यूट. हैरी. यस सर. हाँ हैरी, हेल्प करके दे मल से भाई. हाँ सर. सर सिग्मा P1 Q0 is to sigma P0 Q0 equals to 3:2. तो सर अभी આપણે એને ડિવાઇડ માં લઈ લઈએ, એના ઓરિજિનલ ફોર્મ માં સિગ્મા P1 Q0 upon સિગ્મા P0 Q0 equal to 3/2 into 100. એટલે લાસ્ટ પેર નો ફોર્મ્યુલા લગાવી દેવાનો. हाँ. यहाँ से लास्ट पेयर का फॉर्मूला सीधा लग जाएगा. 150. P1 Q1 P0 Q1 जो ये रेशियो में दिया है, इट इज 3:2. सो 3 डिवाइड बाय 2 हम सीधा कर देंगे. 3 डिवाइड बाय 2 हम कर देंगे तो आई विल गेट द आंसर 150. પછી પાસે છે કેવી રીતે મળશે? સર પાસે માં બી સેમ જ P1 Q1 upon P0 Q1 into 100. એટલે 5 Q1 upon P0 Q1 into 100 करेंगे तो पास्चे का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज 5/3 into 100. So 5 divided by 3 into 100, 166.67. और अब अपने को फिशर कैसे मिलेगा? ये सब फॉर्मूला सीधा सीधा दे के ही रखा है. IL into IF. IL into IP. IL कितना आएगा? 150. IP will be 166.67. 158.12. And root 158.12. 158.12. That's our final answer, 158.12. बेटा सबसे इजी था ये सम टू सॉल्व, सबसे इजी. It was very easy one to solve. Are you getting that? तो बेटा 4 शॉर्ट सम कर दिए, समझ में आ रहा है? Any doubt in any of the short sums? I am loving it, beta. I am loving it. Next, fifth one. Mark it a very important sum. हमने इसके जैसा एक सम किया था इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज 1.4 जो हमने किया था ना, उसमें सम नंबर 1 इसके जैसा ही था. और इसको स्टार परिवार में डाल दो. मोस्ट इंपॉर्टेंट सम. It is the most important sum. If the average monthly disposable income of the middle class family 2014 की income है 14,400, and if the cost of the living index 2015 का है 115, then estimate average monthly income. देखो हमें 2014 की हमें मंथली इनकम दी हुई है, मंथली इनकम, और वो मंथली इनकम कितनी है? 14,400. तो अब जो तुम्हारा 2015 करंट ईयर है, जो करंट ईयर है उसमें तुम्हारी करंट ईयर की मंथली इनकम कितनी है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है. करंट ईयर की मंथली इनकम को तुम्हें फाइंड आउट करना है. आर यू गेटिंग दैट? तो कैसे मिलेगा जरा ध्यान दो. बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है. जरा यहां ध्यान. कहना से मेरा बेस ईयर है 2014. ओके, अब अगर मेरा बेस ईयर है 2014 तो उस बेस ईयर के इंडेक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है हमको? नहीं दी है, नहीं दी है. मंथली इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है जो है 14,400.
लेकिन इंडेक्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। तो मेरा इंडेक्स होगा 100, बेस ईयर का इंडेक्स होगा 100। ये हमें हमेशा अज्यूम कर लेना है कि बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 ही होगा। अब हमको ऐसा बोले हैं कि हमारा करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर है जो 2015, उसमें इंडेक्स है 115, उसमें इंडेक्स है 115, तो मंथली इनकम कितनी होगी? कर लो ये वर्किंग और मुझे फाइनल आंसर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। डू दिस वर्किंग एंड गिव मी द फाइनल आंसर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कम ऑन। But what's the answer? 16560. 16560 कैसे आएगा? Can I say we have to cross multiply? Simple. We have to cross multiply 14,400 into 115 divide by 100. 14,400 into 115 divided by 100, so 16560. That would be our answer, 16560. क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, या तो मैंने इसको ऐसा बोला, एक और तरीका भी है करने का। देखो इंडेक्स 100 से 115 हो गया, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है 15% से 15%। इंटरप्रिटेशन में हम ऐसा ही लिखते थे ना, तो 14500 में भी ऐड कर दो, 14500 में भी ऐड कर दो 15%, तो तुम्हें सीधा उसकी भी मंथली इनकम मिल जाएगी। 14400 में 15% ऐड कर दो, तो कुछ 2160 आएगा, 15% ने वो उसमें अगर हम ऐड कर देंगे, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है, सो मेरा आंसर 16560 आ जाएगा। मेरा आंसर 16560 ऐसा आ जाएगा, 16560 ऐसा अपना आंसर आ जाएगा। Are you getting that? So 2 ways of doing the things. We have 2 methods to solve this sum. Whatever is convenient to you, तुम उस हिसाब से करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी चलेगा, 15% के हिसाब से करके चलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। बेटा 6th वाला खुद से करो, नो हेल्प। अभी जैसा ऊपर हमने किया उसके जैसा ही है। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। अच्छा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मैंने तुमको फॉर्मूला दिया। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7th वाले सम में है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या, उसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया अभी तक? रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिख लो, चलो लिख लेते हैं अपने रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला। मुझे भी पहले रुक जाओ, लेट मी ओपन द पीडीएफ। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का कुछ ऐसा है कि द प्राइस ऑफ द करंट ईयर माइनस प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर
डिवाइड प्राइस ऑफ करंट ईयर, ऐसा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला, जस्ट अ सेकेंड, just a second, I'll make you write that. Yes, लिख देंगे होलसेल प्राइस ऑफ, होलसेल प्राइस लिखो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला लिखो, बहुत इजी है वो, 6th वाला स्टार करो, वो इंपॉर्टेंट है लेकिन हम वो बाद में करेंगे, पहले ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाला कर लेते हैं। चलो पहले फॉर्मूला लिख दो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूजिंग इंडेक्स नंबर का जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उसका फॉर्मूला लिखो, होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस ऑफ करंट ईयर wholesale price of current year minus wholesale price of the previous year minus wholesale price of previous year divide by wholesale price of previous year. The rate of inflation का formula into 100 into 100 कि भाई अपने देश में जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस राइज है, वो प्राइस राइज का व्हाट्स द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो बेटा फॉर्मूला लिख लो, चलो, होलसेल प्राइस ऑफ द करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय होलसेल प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। बेटा जरा चेक कर लो, चेक कर लो, चलो चेक कर लो, होलसेल प्राइस ऑफ द करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब सम नंबर 17 में जरा चेक करो, करंट ईयर के प्राइस कौन से हैं, प्रीवियस ईयर के प्राइस कौन से हैं, जरा चेक करेंगे फटाफट, चेक करेंगे फटाफट। 2015 कैन आई से 150.2 ये प्रीवियस ईयर के प्राइस हैं, एंड 165.7 ये करंट ईयर के प्राइसेस हैं, 165.7 ये हमारे करंट ईयर के प्राइसेस हैं। सो मेरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या आएगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या आएगा, 165.7 माइनस 150.2 डिवाइड बाय 150.2 into 100, 165.7 minus 150.2 divide by 150.2 into 100. So 10.31 या तो 32%, 10.32%, because we have into 100 at the end. So ये जो rate of inflation आएगा that will be in percentage, कि इतने रेट से हमारे सारे होलसेल प्राइस का मतलब हम सब चीजों के भाव इस तरह से ये रेट पे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी तुमने देखा होगा कि प्राइस राइज, मिल्क के भी प्राइस राइज हुए रिसेंटली, 2 रुपीज से प्राइस राइज हो रहा है। सो जनरल प्राइस राइज यहाँ पर है, ये मतलब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी प्राइस, each and every commodities price would increase by around 10.32%. So that is our wholesale price index.
That's our wholesale price index. Any doubt? सिक्स्थ वाला सम अभी पेंडिंग रखा है, वो बाद में करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाद में करेंगे। सेवेंथ वाला निपटा दिया, राइट? एट्थ वाला निपटाओ, चलो खुद से ट्राई करो, बहुत इजी सम है, मार्केट इंपॉर्टेंट सम अगेन। एट्थ वाला भी इंपॉर्टेंट सम छे पण इजी छे, बहुत इजी छे। ट्राई करो, कुछ इंपॉर्टेंस वाली शब्द यहां पर यूज किया है, इंपॉर्टेंस, दिमाग चलाओ, चलो।